एब्रॉड में हायर एजुकेशन के जाने के लिए इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए मैं बता दूं कि आज दिल्ली में आप देख सकते हैं रसिया एम्बेसी में आज यहाँ पर रशियन एजुकेशन फेयर 2022 का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पर विधिवत तरीके से आरंभ हुआ है इस फेयर का। इसमें तकरीबन कहूँ तो रसिया के टॉप 18 जो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रसिया के प्रसिद्ध हैं वो यहाँ पे आज अपने फेयर में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और यहाँ से जो बच्चे हैं जो रसिया में हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए या फिर अदर फील्ड की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर काउंसलिंग या फिर जो भी आपको देखने को मिलेगा स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। हर स्टॉल पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तकरीबन 10, 15, 20 के करीब लोग बैठे क्वेरीज लगातार कर रहे हैं। और इस तरीके की जो क्वेरीज हो रही हैं तो हम चाहेंगे कि बात भी करें और क्या कुछ स्कोप है जो इंडियन स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करके आते हैं और इंडिया में आके उनके लिए कैसा माहौल लेता है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, आपको बताऊँगा। हाय सर, एक्सक्यूज मी, आई एम फ्रॉम मीडिया। I want to know that today is here the education fair is organizing over here. So what is the reaction and the Indian are over here? They are discussing, they are knowing about your education policy or anything. So what do you want to tell you people of the India? I would like to welcome everyone to this fair. We are happy that students are coming. We get curious look, asks. So there is a lot of interest. It's our first time here with an engineering programs from Moscow State University of Civil Engineering. We just launched new programs taught in English, both on bachelor level and master level. And we were happy to meet them, meet students, discuss to show our programs that they can see the quality and the history of good teaching that we provide, and that these are competitive programs for a good price that provide you with opportunities both for academic growth globally and for professional activities both in India and abroad. What is the reaction of the people? Just like here, the many students and parents are coming over here. They are discussing to each other. So how is the first day? What is the reaction? How is the feedback of the people of the India? So they are very interested. They look, they compare, they see the programs that interest them. For example, data science and civil engineering, environmental sciences, environmental engineering. They are really interested. I get the feedback, they get contacts, they ask for more questions, and I'm discussing the future, the campus that they will live in, and the facilities that we provide to the students. And of course, they enjoy the chocolate that I provide them. Excuse me, ma'am. I'm from PNN. I want to just know that what is the, just like today here, the education fair is available over here, and what is the reaction of the people, just like the Indian? You can just sit over here, and can you tell me how is the feedback of the people over here? Okay. Hello, my name is Shani Kusubian. I'm from Moscow State University of Psychology and Education. It's already our, I think, 10 days we are here to working with Indian students. So the feedbacks from students, they are really interested in our programs, and especially in psychology also too. At the first time I was thinking that they are all searching for medicine science, but also when we talk with students, we find out that there is also interesting for the psychology, for cognitive science also, and for clinical and special psychology. It's also kind of the specialty when students can work also in hospitals as a psychologist. So, yes. How do you feel, just like you are in India, you are in India, and what do you want to say, just like you are meeting so many Indian people, so what do you want to say? I'm very thankful for India and all organizers and everyone that I have a chance to be here, because it was my dream since a child to be in India. So, and right now I'm here. The people here are very kind, so they are very nice and they are very beautiful, especially. Thank you very much. जो एजुकेशन फेयर रशियन की तरफ से आयोजन किया गया है, इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियन लोग आके यहाँ पे क्वेरीज कर रहे हैं। राइट। क्या स्कोप है इन लोगों का अगर ये लोग अब्रॉड में जाके एजुकेशन के लिए जाते हैं तो? सर देखिए, बेसिकली अगर आपको पता होगा कि इंडिया में नेट का एग्ज़ाम 18 साढ़े 18 लाख बच्चे देते हैं और सीट्स हमारे पास 90,000 है, जिसमें भी प्राइवेट सीट्स हमारे पास 45,000 के आसपास थी पिछले साल तक। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 50% प्राइवेट सीट को एक्वायर करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स 90,000 के आसपास ही है।
हर साल बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे अगर 2019 और 20 में अगर आप देखेंगे उस टाइम में जो रिक्वायर्ड मार्क्स रहते थे वो 500 नंबर के अंदर बच्चा क्वालिफाई हो जाता था तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, राइट। लेकिन आज के टाइम में वो 600 नंबर के आसपास पहुंच गया है, मतलब 100 नंबर बढ़ चुके हैं पिछले 3 साल में। तो बच्चों के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब इस कंपटीशन को कम करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं अब्रॉड में MBBS करने के लिए, जिसमें आपके पास रशिया बहुत अच्छा प्रेफरेंस है। Oh, ladies and gentlemen, thank you so much for being here. Media coverage is always really appreciated by the embassy. The education fair is a good tradition by now in India. The universities represented here are well known to the embassy and to the majority of Russian citizens. We have very nice representation here. I think 18 or 20 schools. Yeah, 18 universities, government universities. We're seeing a nice footfall. Come study to Russia. It's a nice place to be. What do you want to speak about this education fair? Well, the schools are good. I am personally attached to a few of them. I know the Indian citizens who actually got graduated from there. They're making a nice career both here and in Russia. So learn Russian language, go to Russia, study there in English or in Russian. I think different courses are available. And welcome, welcome, welcome. The यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड ऑल थैंक्स टू एम्बेसी। कोविड में भी स्टूडेंट्स वीज़ा इशू किए गए हैं। वी इशूड स्टूडेंट वीज़ाज टू ऑल द स्टूडेंट्स अनलाइक अदर कंट्रीज who stopped student visas. So Russian embassy has always been helpful to Indian students और हम लोग चाहते हैं कि आज जो इस एजुकेशन फेयर में रशिया की 18 टॉप यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन लेंगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से और अपना आगे का करियर जो है वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ में वो बना सकते हैं, अच्छी एजुकेशन वहाँ से ले सकते हैं। будут какие-то проблемы для визы вот на английском? In fact, Russian visas are extremely easy to get. The visa application form is virtually non-existent. 15 questions, 1 photograph, 1 invitation from the university, and you guys are traveling. There will be some problem in visa or not? No problem with visa whatsoever. It's easier to get than any other visa in New Delhi. Trust me. I can say it easily. The visa officer is working in my division. Guys, come and apply. The visa center is open almost 24/7. We receive direct applications also. Please go, of course. मेडिकल के अलावा इस साल 60% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर फ्रॉम टेक्निकल कोर्सेज, फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन कोर्सेज। सो अभी जो है रशिया जो है पहले 95% बच्चे जो हैं जाते हैं मेडिकल कोर्सेज के लिए, लेकिन इस साल रशियन एजुकेशन इज़ अट्रैक्टिंग मोर इंडियन स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग मोर प्रोग्राम्स इन इंग्लिश मीडियम which include technical fields like IT technology, aerospace engineering, aircraft engineering, humanitarian courses like psychology, IT, BTech, MTech, सभी कोर्सेज इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। देखिए रशियन यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है वो काफ़ी इलेबोरेट रहता है। जो मेडिकल की अगर मैं प्रॉपर बात करूं, इंडिया में 19 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, रशिया में उसको डिवाइड करके 45 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। प्लस इंडियन करिकुलम के लिए उनको रेडी करने के लिए इंडिया से प्रोफेसर्स दे विजिट रशिया, रशियन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जाके उनको वहाँ पे कोचिंग दी जाती है ताकि वो आकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। एवरेज रिजल्ट इज़ 15%। रशियन यूनिवर्सिटीज़ का रिजल्ट जो है वो 40-45% है, 3 गुना ज़्यादा। मैं एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर हूँ और मैं रूस एजुकेशन का वाइस चेयरमैन हूँ। ये जो यहाँ पर रशियन एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है, ये रशियन हाउस और रूस एजुकेशन के मिली भगत में कराया गया है। ये फेयर का मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जितने भी विद्यार्थी हैं उनके पास एक विकल्प होना चाहिए हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। ये विकल्प रूस एजुकेशन और रशियन हाउस ने मिल के उनको दिया है। इस फेयर में शामिल होने के लिए रशिया की तमाम यूनिवर्सिटी के सीनियर वाइस चांसलर्स और डीन और फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं
वो बच्चों को वहाँ के बारे में बताएंगे कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसे प्रदान की जाती है। वो उनके बारे में बताएंगे कि वहाँ पर उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, और साथ में वो उनको इतना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देंगे कि रशिया एक सिक्योर कंट्री है, वहाँ पर हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत दी जाती है। इस साल इंडिया से कम 20,000 बच्चे रशिया जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी का जो सिचुएशन है, नया एनएमसी का गाइडलाइन का हिसाब से बच्चे फिलीपींस पढ़ने नहीं जा सकते हैं। चाइना में वीज़ा का बहुत बड़ा इशू है, इसलिए बच्चे चाइना नहीं जा रहे। यूक्रेन का ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, इसका वजह से बच्चे यूक्रेन जाना अवॉइड कर रहे हैं अभी। तो रशिया अभी टॉप चॉइस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हम इस साल आशा कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कम से कम 20,000 बच्चे अभी रशिया जाएंगे मेडिकल एजुकेशन के लिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।